Hello dear students, this is Ikhlaq sir. So I am back with lecture number 14 in NLM. As you already know, we are done with the NLM first. Okay, तो NLM first तो हो गया हमारा, ठीक है ना? Now next is what NLM second, ठीक है ना? That's friction. We'll be starting with the basic terms. We'll start from the scratch. Okay, the basic terms in the friction. ठीक? तो देख लीजिए बेटा. So first and foremost, these are basic terms, ठीक है ना? We'll start from where? We'll start from the force of friction. ठीक, होता क्या है force of friction? We'll get a feel of this force of friction. We'll define this force of friction properly, and then we'll switch to the problems. ठीक है? तो देख लीजिए बेटा, force of friction denoted by small f. It's a contact force. It's a contact force. You already know that what we mean by contact force. Contact force होता क्या है? It is that force which needs or which requires a physical contact for its existence. Like for example, आपके पास weight है, that's a non-contact force. Normal reaction, that's a contact force. ठीक है ना? इसी तरह से force of friction, it's a contact force. ठीक? That resists relative motion between the two surfaces. What's important is that it resists the relative motion between the two surfaces. Normally, confusion बच्चों को ये होता है that the force of friction is always opposite the direction of motion. It's not true. It's not always true. ठीक है ना? जो force of friction है, it's not necessary. It's always opposite direction of motion. It can be opposite the direction of motion, but it can be in the direction of motion. It can be perpendicular to the direction of motion. ठीक है बेटा? Okay, so it's like this. देख लो बेटा. But what's important is this. What's important here is there that it always resists the relative motion between the two surfaces in contact. Okay, so relative motion between the two surfaces in contact. It's not necessary that the force of friction is opposite direction of motion, but it's always opposite to the direction of relative motion. Okay, so I will explain this point with the help of an example. आप यहाँ पे देख लीजिए बेटा, this is the example. First and foremost, this is a block. This block moves in the forward direction, so this is the direction of the motion. ठीक है? It moves in the forward direction. Okay? Now force of friction किस दिशा में होगा? Obviously that will be the backward direction. इस दिशा में force of friction होगा. Okay? So in this very example, you see that the force of friction is opposite to the direction of motion. Force of friction is opposite to the direction of motion. ठीक है बेटा? अब हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स है बेटा. These are two blocks. This is our block A and this is block B. कितने ब्लॉक्स है बेटा हमारे पास? दो ब्लॉक्स हैं, block A and block B. Now the block A, it is moving towards right. When it's moving towards right, that means the force of friction will be towards left. That's obvious. That's obvious. तो force of friction F1 जो होगा बेटा, again that's opposite to the direction of motion. लेकिन इस पे जो block है, which is block B, it will tend to move in the backward direction. The reason is inertia. So this block B, it will tend to move in the backward direction. But since both these blocks, they move combinedly in the forward direction. तो इसका मतलब जो ये contact है बेटा, this plane of contact, वहाँ पे friction होगा. Yes, there will be force of friction, and that force of friction will be in the forward direction. Now what does it mean? It means that the force of friction F1, it is indeed opposite to the direction of motion, but the F2, it is parallel to the direction of motion. ठीक है ना बेटा? So what does it mean? It means that the force of friction, it's not necessary that it will be opposite to the direction of motion. It can be opposite direction of motion, but at times it can be in the direction of motion as well. Or for example, you are walking on a rough surface. When you are walking on the rough surface, there is a force of friction which is in the forward direction. It is because of the force of friction that you are able to move on the rough surface. अगर ये surface smooth बनेगी तो force of friction zero होगा. You will not be able to walk on the smooth surface. Okay, ठीक है ना? So it's a misconception that force of friction always opposes the motion. It at times opposes the motion, but at times it assists the motion. If there is motion on the blocks, the reason is force of friction. ठीक है ना बेटा? Okay, so I'm sure this is clear to you. Next, देख लीजिए बेटा. Next, again, these are some basic terms. So we'll start from where? From the static friction. ठीक है? Now there are three different types of friction. Force of friction, number one is what we call as static friction, number second what we call as limiting friction, and number third is what we call as kinetic friction. Here I have written down the definitions and I will try to explain each of these. तो देख लीजिए बेटा आप. First and foremost is static friction. It is the force of friction between two surfaces that don't have any relative motion but tend to have relative motion. This is very important. For example, there is a block. आप एक block एक horizontal surface पे रखोगे. What's the force of friction? That's absolutely equal to zero. That's equal to zero. ठीक है ना बेटा? तब force of friction नहीं होगा. Now you apply a very small force on this block. Okay, so this block tends to move, but it does not move. It tends to move, it does not move. वहाँ पे force of friction होगा. That force of friction is called static. Why static? The reason is that this block is at rest. It is static. That's why it's called static friction. ठीक है? Next point जो है हमारे पास है, that is static friction is a self-adjusting force. Again, very important term. That is static friction is a self-adjusting
force. I will explain this as well with the help of an example. Okay, limiting friction जो है it is called as maximum value of static friction. Okay, then the kinetic friction is that force of friction when the two surfaces have relative motion. Okay, now what I will do next is that let me try to explain each of these terms, what we mean by static friction, what we mean by limiting friction, and what we mean by kinetic friction by giving an example. यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं बेटा, concentrate here, concentrate here. तो मान लीजिए बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्राइटर है, दिस हैवी बॉक्स, दिस हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स, ठीक है बेटा. ओके, नाउ राइट नाउ एट दिस वेरी पॉइंट हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन दिस बॉक्स? देयर आर ऑब्वियसली टू. कौन कौन सा? नॉर्मल एंड वेट. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? दैट्स इक्वल टू 0. इज देयर एनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? नॉट एट ऑल. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0 इन दिस वेरी सिचुएशन. ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वी विल अप्लाई फोर्स दैट्स इक्वल टू F. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की दिशा में होगा. व्हाट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली वांट्स? It wants to have a zero relative motion between the two surfaces in contact. It does not want the block to get displaced. ठीक है, that's what force of friction wants. ठीक, अब आप मान लीजिए बेटा अगर ये कैपिटल F 0 न्यूटन है, that means आगे की दिशा में कोई फोर्स है ही नहीं, it will be at rest. तो पीछे की दिशा में जो फोर्स होगा that will be equal to 0 न्यूटन. Isn't it? There is a heavy, very heavy box and you are trying to pull that box. Now slowly what you will do is that you will try to increase the value of this capital F. For example, from 0 Newton to 1 Newton. Will this block move or not? No, not at all. It will be at rest. Force of friction कितना होगा? 1 Newton. So that the forward force will cancel with the backward force and the net force on this block will be equal to what? That will be equal to 0. अब जो ये friction है, is it static or kinetic? It is static. What we mean by that it is static? It means that the block is at rest. There is no relative motion between the two surfaces contact, hence this friction is called as static friction. ठीक है ना? Slowly what I will do is that I will try to increase the value of this capital F. For example, it's 2 Newton. Again, it's at rest. Force of static friction कितना होना चाहिए? 2 Newton. This is for example 3 Newton. अब ये कितना होगा बेटा? This will be equal to 3 Newton. So on and so forth. For example, this is equal to 4 Newton. बताइए ये static friction किसके बराबर होगा? That will be equal to 4 Newton. Clear or not? That is what we call a self-adjusting. जो ये static friction है, इसका constant value नहीं है. Its value depends upon the capital F. Rather, it is equal to capital F. You increase the value of capital F, static friction will also increase, such that the block will be at rest. थोड़ा सा force up लगा लो, ब्लॉक नहीं चलेगा. और थोड़ा फोर्स लगा लो, ब्लॉक नहीं चलेगा. और थोड़ा इंक्रीज कर लो, ब्लॉक नहीं चलेगा. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इट इज सिंपली इक्वल टू कैपिटल F. दिस इक्वेशन टेल्स मी दैट इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग. सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट. इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द कैपिटल F. जो वैल्यू कैपिटल F का होगा वही स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा एंड द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, सर क्या जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, what it is upper limit, what is the maximum value, is it infinite? No, not at all. अगर इसका वैल्यू infinite होगा, then there is it's not possible that any block in this universe can move. It can move from one point to another point, or any object can move from one point to another point on a rough surface. ठीक है, तो जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा. मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? सपोज दैट यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10 न्यूटन. लेट्स सपोज इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इफ यू विल इंक्रीज द कैपिटल F from 0 Newton to 10 Newton, the block will be at rest. Acceleration of the block will be equal to 0 and the static friction will be equal to what? Capital F. ठीक है ना? अब जो ये 10 न्यूटन है, when you will apply a capital F that's equal to 10 Newton, the block will be at rest, but it will be at the verge of sliding. At the verge of sliding उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अगर आप फोर्स लगाओगे थोड़ा सा ज्यादा, like 10.002 न्यूटन, in that very case the block will slide in the forward direction. That is what we call as limiting friction. ठीक है ना बेटा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, व्हाट वी मीन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है ना? इट इज दैट वैल्यू ऑफ द फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू. ठीक है बेटा? इक्वल टू कैपिटल F. वन इज दिस कैपिटल F. इफ फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल राइट लाइक दिस, इफ फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल F, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, is less or equal to this limiting friction. If it is less or equal to limiting friction, then in that very case block will be at rest, acceleration will be equal to 0. ठीक है ना? तब तक ब्लॉक नहीं चलेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या इससे कम हो.
ठीक है, जो ही ये इससे ज्यादा बनेगा, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब क्या होगा बेटा, उस वक्त ये होगा दैट एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, नाउ द ब्लॉक विल मूव, एंड व्हेन द ब्लॉक विल मूव देयर विल कम व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक ब्लॉक रेस्ट में है तब तक हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। एंड जो ही ये चलेगा, एज सून एज इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिफाइन विल बी व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, दैट इज सिंपली लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, नाउ दिस ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देयर इज एफ, दिस एफ इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इफ इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट मीन्स दिस ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर अब ये एक्सेलरेट करेगा तो पीछे की दिशा में एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। और जो ये काइनेटिक है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। व्हाट वी मीन बाय दैट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिमिटिंग कितना लगाया था बेटा, 10 न्यूटन। मान लीजिए बेटा फॉर एग्जांपल दिस एफ इज इक्वल टू 11 न्यूटन, this is, or for that matter it is 12 newton, it is 13 newton, it is 14 newton, it is 15 newton, so on and so forth। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मान लो बेटा, सपोज इट इज इक्वल 8 न्यूटन, क्या है बेटा, 8 न्यूटन, ये हमेशा 8 न्यूटन ही रहेगा, it will not change, it will always remain constant, the kinetic friction will always remain constant, ठीक है ना, it will remain 8 न्यूटन, ये फोर्स कितना भी हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू। तो इसका मतलब ये है दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। व्हाट वी मीन बाय दैट, स्टैटिक फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द कैपिटल एफ। आप कैपिटल एफ को इंक्रीज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन विल इंक्रीज, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दैट सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप कैपिटल एफ को बढ़ाओगे बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, in that very case the block will move, and when the block will move the static friction is no longer there, there is what we call as kinetic friction, ठीक है ना बेटा। so I'm sure that these definitions are now clear to you, they are crystal clear to you, ठीक है ना। so static friction is what, it's a force of friction between two surfaces that don't have any relative motion but tend to have relative motion, then static friction is the self adjusting, I have explained this as well, it is equal to capital F, ठीक है ना बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, देन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन दे हैव रिलेटिव मोशन। लेट मी ऐड अ कपल ऑफ पॉइंट्स हियर, व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल ऐड अ कपल ऑफ पॉइंट्स हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, ओके, यू कैन राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, static friction is a self adjusting force, is a self adjusting force, ठीक। what does that mean, that means जो static friction है that is equal to capital F, point number first, ठीक है बेटा, it is equal to capital F। point number second मैं ये भी बता सकता हूँ that static friction is not a constant value, is not constant, it's not constant, its value depends on what, capital F। point number third, जो static friction का maximum value है, maximum value, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट्स व्हाट वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। पॉइंट नंबर अनदर इज दिस दैट जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, व्हेन द ब्लॉक्स विल बी इन मोशन देयर विल बी व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इज नॉट ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज नॉट ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, वो ये होगा बेटा दैट when will the block accelerate and when will the block will not accelerate, ठीक है बेटा। what is the condition for the block to accelerate and what's the condition when the block will not accelerate, ठीक। उसके लिए कंडीशन सिंपल ये है, if for example the external force capital F, if it is less or equal to limiting friction, then in that very case acceleration will be equal to 0। if for example this capital F becomes greater than limiting friction, in that very case acceleration will not be equal to 0, ठीक है बेटा। और वहां पे जो आएगा force, that will be equal to what, the force of friction will be there, that will be kinetic in nature, that's kinetic force of friction, ठीक है बेटा। ओके, सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, देख लो अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट ये है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वी मस्ट नो व्हाट आर द एक्सप्रेशन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट्स स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू, व्हाट्स काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है ना। ओके, सो वन बाय वन लेट मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफाइन व्हाट लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ ब्लॉक, इसका मास मान लो बेटा दैट्स इक्वल टू m, नाउ वी आर अप्लाइंग ए फोर्स दैट्स इक्वल टू कैपिटल F, ठीक है। Capital F is applied in the forward direction. Now I am sure that you know what's limiting friction. It is the maximum value of static friction.
ऑलराइट, तो इसमें दो फोर्स होंगे बेटा, नीचे की दिशा में एक फोर्स होगा विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई g, ऊपर की दिशा में एक फोर्स होगा दैट्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए देयर इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, वो सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है बेटा, आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स आपके पास हैं, वन इज अ लाइट ब्लॉक, अनदर इज अ हैवी ब्लॉक। आप मुझे ये बताइए कौन सा ब्लॉक, विच ब्लॉक इज इजी टू स्टार्ट एंड विच ब्लॉक इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट। द आंसर इज ऑब्वियस दैट इट इज इजी टू स्टार्ट अ लाइट ब्लॉक एंड डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ हैवी ब्लॉक। What does that mean? That means जो ये limiting friction है, it is directly proportional to the normal reaction. That is what I am going to write here. ठीक है बेटा? So first and foremost, let me have an expression for what limiting friction, F limiting. The point number first I will write down is this, that F limiting is directly proportional to normal reaction. ठीक है ना बेटा? जितना ब्लॉक का वेट ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, सो इन दैट वेरी केस यू हैव अप्लाई बिगर फोर्स इन ऑर्डर टू मूव दैट और स्टार्ट दैट ब्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है नॉर्मल एफ लिमिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अब ये क्यों है? द रीजन इज सिंपल, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेस इज मोर, सो दे विल बी मोर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, as a result of which the force of friction will increase. ठीक है ना? तो limiting friction किसके बराबर है? Directly proportional to what? Normal reaction. Then I will write like this, that this limiting friction is equal to, there's a constant of proportionality, that is mu into s multiplied by n. Mu into s multiplied by n. ठीक है बेटा, this is our equation number first. While mu s is a constant of proportionality and is called as coefficient of friction. देखो बेटा, जो ये force of friction है ना, it will not depend only on the normal reaction. It depends on normal reaction, but not only on the normal reaction. It will also depend upon the nature of the surfaces. Like for example, एक simple experiment है, आप एक गिलास सरफेस को लो, उस गिलास सरफेस पे आप दो ब्लॉक्स रख लो ऑफ सेम मास, आइडेंटिकल ब्लॉक्स. वन ब्लॉक मस्ट बी स्टील ब्लॉक, अनदर ब्लॉक मस्ट बी रबर ब्लॉक. दोनों ब्लॉक्स को आप खींचो. ठीक है ना बेटा? विच ब्लॉक इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन द ग्लास सरफेस एंड विच ब्लॉक इज इजी टू मूव. तो आप ये पाओगे बेटा दैट द स्टील ब्लॉक, इट्स इजी टू ड्रैग द स्टील ब्लॉक ऑन द ग्लास सरफेस एंड it is difficult to drag a rubber block. The reason is that between the rubber and the glass the friction is more, coefficient of friction is more, and between the steel and the glass the friction is less. ठीक है ना? So that means there must be some physical quantity which will take care of the nature of the surface, and that is taken care of by the coefficient of friction which is mu. तो ये mu s है क्या? What is this mu s? This is what we call as coefficient of static friction. Coefficient of static friction. What's it? It's coefficient of static friction. ठीक है बेटा? और mu s किस पे डिपेंड करता है? Obviously it will depend on what? It will depend on the nature of surfaces. Nature of surfaces का मतलब nature of material of the surfaces, and number second is that smoothness and the roughness of the surfaces. For example, आपके पास एक ब्लॉक है, wooden ब्लॉक आप ले लो, एक ग्लास सरफेस पे रख लो, पहले ये रख लो ऐसे ही. फॉर एग्जाम्पल इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रफ ब्लॉक, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, it will be more. ठीक है ना? And now what you do is that you polish this wooden block, the force of friction will reduce. That means the force of friction depends upon normal reaction and depends upon the nature of the surfaces in contact. ठीक, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन. दिस इक्वालिटी इंप्लाइज दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू. इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? इट इज परफेक्टली कांस्टेंट. ठीक, next is number 2. Number 2 is what I am going to define is the static friction. ठीक है ना बेटा? Fs. अब ये Fs किसके बराबर होता है? ठीक, तो अभी मैंने आपको बोला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है that is the maximum value of static friction. उसका मतलब क्या है? जो ये static friction है, its value lies between, it has a range of values. Its value will lie between 0 and the F limiting. इसका जो कम से कम वैल्यू होगा वो 0 होगा. कब होगा? when external force equal to 0. इसका सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगा? लिमिटिंग. तो इसका मतलब जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इट विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू एफ लिमिटिंग. लेस और इक्वल टू एफ लिमिटिंग. देयर इज एन इनइक्वालिटी. इस इनइक्वालिटी का मतलब है इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ठीक है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा? दैट विल बी लेस और इक्वल टू एफ लिमिटिंग के बदले हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड व्हिच विल ऑलवेज गिव यू व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसका वैल्यू म्यू एस एन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम होगा. इसके बराबर अगर होगा तो वही है लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है ना? सो नंबर 2 वी आर डन. एंड नंबर थर्ड इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन.
नंबर थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल नाउ द फोर्स इज अप्लाइड एंड दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या चलेगा? ऑब्वियसली द ब्लॉक विल मूव। व्हेन द ब्लॉक विल मूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस विल बी व्हाट? दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, जितना भारी ब्लॉक है तो उतना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि फॉर एग्जांपल कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, इजीली यू कैन पुल दैट। कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, यू आर नॉट एबल टू पुल दैट। द रीजन इज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर, नॉर्मल रिएक्शन इज मोर। ऑल राइट, तो एफ के हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है, अगेन इट इज इक्वल टू, दैट मीन इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये म्यू के क्या है? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे मैंने लिखा। ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन दिस म्यू के इट विल टेक केयर ऑफ द नेचर ऑफ द surfaces in contact. Okay, so these are three different expressions. Number one for the static friction, number one is limiting friction, number second is static friction, and number third is kinetic friction, which we will be using during the course of our this problem solving. ठीक है? Okay, तो next हम देख लीजिए बेटा, next क्या है? Before going into this, what I will write down is this. Let me summarize these equations. तो equation number first जो हमारे पास है, what is that? That is equal to what? That is limiting friction. वो किसके बराबर होता है? That is equal to mu s multiplied by n. Equation number second हमारे पास जो है बेटा, that is static friction. That is less or equal to mu s multiplied by n. Equation number third जो हमारे पास है, that is what? That is kinetic friction. और वो kinetic friction किसके बराबर होता है? That is equal to mu k multiplied by n. All right? ठीक है ना? Now here I will write down some important points. देख लो बेटा वो क्या है? Point number 4 let me write here. That is this. जो ये म्यू एस और म्यू के हैं, इनका जो वैल्यू होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज फोर्स, न्यूटन एंड न्यूटन विल कैंसल। तो इसका मतलब जो म्यू एस हैं एंड म्यू के हैं, दे आर व्हाट? दे आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, नीट 2019 में क्वेश्चन आया बेटा, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन म्यू एस एंड म्यू के? दैट इज 0। ठीक है, सो दे आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आप यहाँ पे देख लीजिए बेटा, पॉइंट नंबर 5 इज दिस म्यू एस एंड म्यू के जो है, म्यू एस एंड म्यू के, दे आर ऑलवेज लेस देन 1। दे आर ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है बेटा, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है लाइक 0.2, 0.4, 0.5। ठीक है ना? So they are always less than 1. Number 6, point number 6, important point. बहुत बार आपने ये देखा होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आप ऐसे समझिए, देयर इज अ कुली एंड दिस कुली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज दैट ही इज पुशिंग अ कार्ट। ही इज पुशिंग अ कार्ट। नाउ दिस कार्ट इज वेरी हैवी। जब ये बहुत ज़्यादा भारी है ना, तो वो क्या करता है, वो मतलब ही कॉल्स अ फ्यू पर्सन्स एंड ऑल दीज पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल 2-3 पर्सन्स, दे पुश दिस कार्ट। ओके, when the cart starts, after that वो उनको ये बोलता है थैंक यू। ठीक है ना? then what he does is that he pushes the cart himself all alone. ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? why is it that he needs some persons, some 3-4 persons to push this cart? लेकिन एक बार जब ये cart start हो गया तो फिर वो क्या करता है? then what he does is that he pushes the cart himself all alone. ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी एक्सपीरियंस शायद किया होगा कि जो टांगे वाला होता है, so what he initially does is that he helps his horse, ठीक, to pull that tanga. Okay, once the tanga starts, then what the same person does is that he jumps into that tanga and the horse is able to pull that cart himself. ठीक है ना? So what does that mean? That means जो ये limiting friction है, limiting friction, it is greater than the kinetic friction. That's why it's always difficult to start an object than to keep it moving. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको स्टार्ट करना होगा, सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट दैट, बट वंस दैट स्टार्ट्स मूविंग देन इट्स इजी टू कीप इट मूविंग। द रीजन इज व्हाट? रीजन है बेटा, वो काम किसका है? वो है म्यू का काम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, विच एम्प्लाइज दैट, व्हाट डज दैट एम्प्लाई? दैट एम्प्लाइज दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा, दैट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी कैन नॉट कंपेयर स्टैटिक फ्रिक्शन विद द काइनेटिक। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल है, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है,
स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो सकता है बिटवीन 0 एंड 10 न्यूटन, लेकिन काइनेटिक का फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। लाइक फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन, मान लीजिए कितना है 10 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन मान लीजिए 7 न्यूटन है, तो लिमिटिंग का कांस्टेंट वैल्यू है 10 न्यूटन और काइनेटिक कितना है 7 न्यूटन कांस्टेंट है। जो स्टैटिक है ना, इट्स वैल्यू कैन लाई बिटवीन 0 एंड 10 न्यूटन, ठीक है। सो यू कैन नॉट कंपेयर स्टैटिक विद द काइनेटिक, द रीजन इज इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इट्स वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन काइनेटिक, इट्स वैल्यू कैन बी लेस देन काइनेटिक। वो पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन करूंगा बेटा। पॉइंट नंबर 7 व्हाट आई विल राइट डाउन इज दिस, दैट इज Fs, Fk and Fs can't be compared, can't be compared, we cannot compare the two, ठीक है। Okay, so I'm sure this is crystal clear to you, ठीक। All right, so limiting friction is always greater than kinetic friction, it is true, but we cannot compare the static friction with the kinetic friction because static friction का कोई constant value होता ही नहीं है, kinetic friction का constant value होता है, limiting friction का constant value होता है, but the static friction not, ठीक। और ये point important है that static coefficient of static friction is greater than the kinetic friction। I am sure यहाँ तक समझ में आया होगा। Next आप देख लो बेटा, again interesting, that is this, plot a graph between the small f and capital F, that is force of friction and the external force। देख लो बेटा, I think these concepts will be again clear with the help of this graph। इस ग्राफ से और ये समझ में आएगा बेटा आपको। So this is here, for example, suppose that this is here, what this is force of friction and this is the external force of friction and external force, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉर एग्जांपल कैपिटल F इज इक्वल टू 0, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो व्हेन कैपिटल F इज इक्वल टू 0 द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट। आप कैपिटल F को बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी देयर, दैट्स कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी इंक्रीज होगा, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, एग्जैक्टली लाइक दिस। जो ये एंगल होगा बेटा, इट विल बी एग्जैक्टली 45 डिग्री। द रीजन इज दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा, क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या इसका अपर लिमिट इनफाइनाइट है? नॉट एट ऑल, इसका एक अपर लिमिट है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन और 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, ठीक है ना बेटा। तो इसका एक अपर लिमिट है, एंड दैट अपर लिमिट इज व्हाट वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। This is what we call as limiting friction. Static friction can increase only up to a value that's called as limiting friction. तो जो limiting friction it is the maximum value of the static friction. ठीक है ना बेटा, क्लियर। Now next, अब next क्या होगा बेटा, next क्या होगा after this, now the blocks at the verge of sliding, जो उसके बाद जो फ्रिक्शन होगा that will be kinetic, and you know that kinetic is less than the limiting friction। तो जो ये ग्राफ ये थोड़ा सा नीचे आएगा बेटा ऐसे, ठीक है ना, and then thereafter it will remain constant, ठीक। तो उसका मतलब ये है बेटा दैट दिस इंप्लाइज व्हाट, यहां पे ध्यान रखिए बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ सी दैट दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन द पीक वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, and kinetic friction is less than limiting friction। That is why it is easy to keep a block moving than to start it। It's always difficult to start a block and then it becomes easy to keep it moving, ठीक। तो ये है बेटा काइनेटिक। ये लिमिटिंग किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। ये काइनेटिक किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका जो वैल्यू दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड दिस म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, सी दैट दिस इज कांस्टेंट, kinetic friction is a constant, it is constant, it does not depend upon the capital F, this Fs it will be equal to capital F। आप कैपिटल F को बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज आल्सो क्लियर, आई एम श्योर। नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट, okay, next again an important point here, point number 8, and that is what we are starting from the basics। what we are trying to do is that we are trying to make the foundation very strong, very concrete, so that we can do the problems effectively, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा आप, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 क्या है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख के है बेटा, दैट इज एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑलवेज ये याद रख लो बेटा दैट नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट।
which in turn means that force of friction and normal reaction they'll be always mutually perpendicular, always mutually perpendicular. ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा. Let me explain it with the help of a diagram. Concentrate here. ये देख लो बेटा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल ए ब्लॉक. हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा, ठीक है ना. इसका मास मान लो बेटा दैट्स इक्वल टू m. वी आर अप्लाइंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन दैट इक्वल्स टू व्हाट, दैट इक्वल्स टू f. ऑलराइट, ठीक है ना बेटा. ओके, अब बोलो बेटा इस पे कितने फोर्सेस होंगे. नंबर वन इज देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ दिस ब्लॉक इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस दिशा में होगा? दैट विल बी टुवर्ड्स राइट. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है ना. सो व्हाट आई विल राइट डाउन इज पॉइंट नंबर फर्स्ट इज व्हाट, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो मैं लिखूंगा बेटा दैट इज लाइक दिस, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड जो नॉर्मल डायरेक्शन दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. रादर आई विल राइट लाइक दिस, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल डायरेक्शन. ठीक है ना बेटा. सो दे आर एक्चुअली व्हाट, बोथ आर कॉन्टैक्ट फोर्स. रादर आई विल से दैट दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू डू दैट, लेट्स ट्राई टू डू दैट. तो रिजल्टेंट इसका निकालना है बेटा. सो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय दिस. ठीक है ना. कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, complete this parallelogram. The diagonal of this parallelogram will give the resultant contact force, which will be equal to what? Fc. What is this Fc? It is the resultant of the force of friction and normal reaction, or it is the resultant contact force. ठीक, along this very direction. ठीक है ना. अब यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है? You will have to define what is the angle of friction. Angle of friction is actually defined as what? It is defined as the angle between the resultant contact force and the normal reaction. तो ये वाला angle जो है, this is defined as theta. ठीक. तो अगर ये फ्रिक्शन है तो हम लिख सकते हैं बेटा दिस ऑल्सो फ्रिक्शन. तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n. ऑलराइट, ठीक है बेटा. सो इजीली वी कैन कैलकुलेट दिस. और अगर ये n है तो ये भी लिख सकते हैं दिस इक्वल टू n. नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज दिस रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. नंबर वन. नंबर सेकंड इज दैट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू डिफाइन व्हाट इज दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं बेटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो ए पार्ट इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, ए पार्ट इज दैट लेट्स कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स Fc. तो Fc किसके बराबर आएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज दैट, दैट्स इक्वल f स्क्वायर प्लस व्हाट m स्क्वायर. ठीक है ना. इस f के बदले हम क्या लिख सकते हैं? म्यू n. तो ये आएगा बेटा म्यू स्क्वायर m स्क्वायर प्लस व्हाट m स्क्वायर. ठीक है ना. अब इन दो में से m स्क्वायर कॉमन आएगा, वो बाहर आएगा, तो ये बनेगा बेटा n इंटू रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है ना बेटा. और अगर फॉर एग्जाम्पल दिस सरफेस इज स्मूथ, इन दैट वेरी केस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. जब वो 0 आएगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा सिर्फ ओनली, देयर विल बी ओनली वन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दैट विल बी व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक. सो वी आर डन विद द ए पार्ट. बी इज दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट the angle of friction. Angle of friction होता है बेटा the angle between the normal reaction and the resultant contact force. Okay, so let me define here tan theta in this very triangle that is equal to perpendicular divided by base. अब इस triangle में perpendicular क्या है बेटा? That is f. What about base? Normal reaction. f किसके बराबर है? mu into n divided by what? n. n and n goes to heaven. तो tan theta किसके बराबर आएगा? That will be equal to mu. तो इसका मतलब जो theta है that comes out to be what? tan inverse of mu. very very important equation. ठीक है ना बेटा. ये इक्वेशन याद रख लो, that theta is equal to tan inverse of mu. जिस तरह मैंने आपको NLM फर्स्ट में बताया था that memorize the equation A equal to g tan theta, उसी तरह यहाँ पर भी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. this equation will be time and again repeated in the force of friction. alright, in the friction chapter. ठीक है ना. so here we have defined what the resultant contact force, which comes out to be what, under root of n into under root of mu square plus 1, and we have defined what is the angle of friction, which is theta equal to tan inverse of mu. ठीक. so I'm sure this is crystal clear to you. next देख लीजिए बेटा, next इसमें क्या है. okay, next this is some basics. ठीक. next आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा बेटा. फॉर एग्जाम्पल आपको घर में बताया जाता है आप मार्केट जाओ, आप मार्केट से गैस सिलेंडर लाओ. ठीक है ना. तो जब आप मार्केट से गैस सिलेंडर लाते हो, डू यू रोल दैट गैस सिलेंडर और यू स्लाइड दैट? यू ऑब्वियसली रोल दैट. ठीक है ना. आप वो ऐसे खींच के घर नहीं लाते हो,
you roll that. अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है द रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई इट इज इजी टू रोल एन ऑब्जेक्ट देन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट। तो वही हमने लिखा दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक, म्यू रोलिंग इज लेस देन म्यू स्लाइड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रोलिंग इज लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन while you slide the object, ठीक, that's why it is easy to roll a cylinder than to slide it, ठीक। नेक्स्ट इज दिस, ये भी आप याद रखो बेटा, दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन काइनेटिक एंड काइनेटिक इज इन टर्न लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आगे चलते हैं। ओके बेटा, नाउ द प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा। सो बेसिक्स आर clearly covered, all the basics are covered, ठीक है ना बेटा। Now next what I will do is that I will try to explain the problems in the force of friction. ठीक है बेटा, okay, all right. So type first is what? Examples. Type first is motion of block on the rough horizontal surface. हमारे पास एक rough horizontal surface है, okay, and the block is moving on that, and we are supposed to calculate what different physical quantities like acceleration and all that. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा व्हाट्स द जनरलाइज्ड वे टू डू दोस प्रॉब्लम्स, दैट इज स्टेप नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है बेटा, दैट इज कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, कंपेयर इट विद कैपिटल एफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था दैट अगर ये कैपिटल एफ होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम तो ब्लॉक नहीं चलेगा, उस वक्त एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? जीरो, और जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वही हमने लिखा दैट कैलकुलेट एफ लिमिटिंग विच इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन एंड कंपेयर इट विद एफ कैपिटल एफ, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इफ एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ, या कैपिटल एफ इज, या रादर आई विल राइट लाइक दिस, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज मोर suitable, that f is, if this f is less or equal to f limiting, less or equal to f limiting, ठीक है ना, then in that very case body is at rest, इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड इज दैट इफ दिस कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग देन बॉडी विल एक्सेलरेट, और जब ये एक्सेलरेट करेगा देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, रादर आई विल से लाइक दिस, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है बेटा, समेशन ऑफ ऑल मासेस, ठीक। अब इसमें चलाने वाला फोर्स बनेगा बेटा एक्सटर्नल फोर्स, रोकने वाला फोर्स बनेगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल मास, ठीक है बेटा। ओके, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स, आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी इवन मोर क्लियर, ठीक। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो देख लो बेटा, एग्जांपल नंबर 1 है क्या? एग्जांपल नंबर 1 इज सिंपली लाइक दिस, दैट दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, block is placed on horizontal surface, block is placed on horizontal surface, block is placed where? It is placed on a horizontal surface, ठीक है ना, simple। calculate what you are supposed to calculate is force of friction, you will have to calculate F, ठीक है ना बेटा। ओके, व्हाट यू विल डू इज दिस, आप जल्दी से करोगे, हाँ सर ने बोला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, आप लिखोगे ऐसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, एन यहाँ पे किसके बराबर होगा? वेट के बराबर, म्यू आप कितना लोगे? 0.2, इसका मास क्या है? 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, 0.2 इंटू 10 इज 2, 2 इंटू 10 इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन पहला ऑप्शन होगा, गलत आंसर है, तो ये गलत आंसर है बेटा। क्लियर और नॉट? द रीजन इज दैट जो आपने निकाला ना ये 20 न्यूटन, इट्स अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट्स इट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा बेटा, इफ दिस कैपिटल एफ बिकम्स lies between 0 and limiting friction, then in that very case block will not accelerate and the force of friction will be equal to the external force, आगे वाला फोर्स will be equal to पीछे वाला फोर्स, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है बेटा, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, जो हमने यहाँ पे किया इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। आप सिर्फ ये देख लो बेटा, क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो, नॉट एट ऑल। कैपिटल एफ इज इक्वल टू व्हाट? 0, तो इसका मतलब सिंपली दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन। ये भी एक ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन यही है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर और नॉट? ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर बट देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 10 न्यूटन। तो अब करोगे क्या? व्हाट यू विल डू इज दिस, स्टेप नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन? कंपेयर इट विद द कैपिटल एफ। अगर कैपिटल एफ इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। जब ये रेस्ट पे होगा तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। तो आगे वाला फोर्स विल बी इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, और पीछे वाला फोर्स जो यहाँ पे है दैट्स फ्रिक्शन।
विच इज स्टैटिक इन नेचर। ठीक है ना बेटा, तो देख लो बेटा कॉन्सेंट्रेट यार। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ वो ये है दैट अगर म्यू दिया गया है दैट्स इक्वल 0.2, ओनली वन वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन, अलग अलग नहीं दिया गया है म्यू एस एंड म्यू के, ओनली वन वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन दैट्स इक्वल 0.2। तो आप बोलोगे सर क्या हम म्यू एस का वैल्यू क्या लेंगे और म्यू के का वैल्यू क्या लेंगे, देन इन दैट वेरी केस टेक म्यू एस इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.2 एंड म्यू के आल्सो इक्वल टू 0.2। अगर अब मेंशन किया गया है म्यू एस और म्यू के अलग अलग, सो व्हेन द ब्लॉक इज एट रेस्ट टेक म्यू एस एंड व्हेन द ब्लॉक इज इन मोशन टेक म्यू के। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा आप, यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा आप। सो एग्जांपल इज दिस। ठीक, अगेन आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट। स्टेप नंबर फर्स्ट, आई विल कैलकुलेट एफ लिमिटिंग। क्या निकालेंगे बेटा, एफ लिमिटिंग। व्हाट इज दैट, इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एम इंटू जी, क्योंकि ऊपर की दिशा में है बेटा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की दिशा में क्या है, वेट, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, वेट के बराबर। सो लेट्स कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट्स वैल्यू ऑफ म्यू, 0.2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, 10। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10। 0.2 इंटू 10 इज 2, 2 10s आर 20 न्यूटन निकलेगा बेटा ये। ठीक है ना, इस 20 न्यूटन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर एक्सटर्नल फोर्स लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 20 ब्लॉक नहीं चलेगा, जो ही कैपिटल एफ 20 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा उस वक्त ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना बेटा, तो देख लो कॉन्सेंट्रेट हियर। सो इन दिस वेरी केस व्हाट आई विल राइट डाउन इज दिस, कैपिटल एफ इज लेस देन एफ लिमिटिंग। तो इसका मतलब है बेटा ब्लॉक इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। ए पार्ट इज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। बी पार्ट इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जब एक्सेलरेशन इसका 0 है तो आगे वाला फोर्स किसके बराबर होगा, पीछे वाला फोर्स, और पीछे वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल कैपिटल एफ विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 न्यूटन। ठीक है ना बेटा, आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट लिमिटिंग कंपेरेटिव कैपिटल एफ। कैपिटल एफ कम हुआ नहीं चलेगा, फ्रिक्शन विल बी कैपिटल एफ। कैपिटल एफ ज्यादा हुआ चलेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है ना, तो देख लो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन सिमिलर। अगेन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज दैट, कैलकुलेट ए पार्ट इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बी पार्ट इज दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है ना बेटा, तो यहां पे ध्यान रखिए बेटा, यहां पे ध्यान रखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट हियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, विल कैलकुलेट व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, किसके बराबर होता है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन और म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन, म्यू एस इंटू एम इंटू जी। यस आर नो? यस सर। इसके बाद बोलो बेटा म्यू एस के बदले क्या लिखेंगे, 0.2, मास इसका 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, ये क्या निकला बेटा 20 न्यूटन। क्या निकला 20 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकला 20। नाउ कंपेयर दिस 20 विद द 30। क्या 30 ज्यादा है 20 से? हाँ ज्यादा है। ब्लॉक चलेगा? हाँ चलेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम, इसमें लिखेंगे बेटा कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है बेटा ब्लॉक विल एक्सेलरेट, ब्लॉक एक्सेलरेट्स, ब्लॉक एक्सेलरेट्स। और अगर ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग। वो किसके बराबर होगा, असल में वो होगा काइनेटिक, लेकिन यहां पे आप देख लो म्यू का एक ही वैल्यू दिया गया है ना, तो फ्रिक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग। ठीक है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 20 न्यूटन। तो हो गया बेटा ए पार्ट आपका। देन बी पार्ट इज दैट यू वांट कैलकुलेट एक्सेलरेशन, आराम से आप निकाल सकते हो बेटा, दैट विल बी इक्वल चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें आप देख लो बेटा चलाने वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन, पीछे की दिशा में एक फोर्स है बेटा दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना है 20 न्यूटन। तो आगे वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला फोर्स कम है, तो एक्सेलरेट तो करेगा ही। 30 माइनस व्हाट 20 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 डिवाइड बाई इसका मास क्या है 10 है इसका मास, 30 माइनस 20 इज 10, 10 बाई 10 इज 1। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, लेकिन अब अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया गया होगा, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन दैट, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन दैट। देख लो बेटा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, वो ये वाली एग्जांपल बनेगी बेटा लाइक दिस इट इज। देख लो, कॉन्सेंट्रेट हियर। ये हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा, लेट्स टेक द मास सेम दैट्स इक्वल टू व्हाट, हमने यहाँ पे मास क्या लिया था 10 kg, लेट्स टेक द मास 10 kg अगेन, मास हम लेंगे बेटा 10 kg।
यहाँ पे दो वैल्यूज दिए गए हैं बेटा, म्यू एस अलग और म्यू के अलग दिया गया है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, इसमें म्यू एस क्या था 0.2, लेट्स टेक म्यू एस 0.2, म्यू के इससे कम है 0.1 लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स सेम लेंगे बेटा, दैट्स इक्वल टू 30 न्यूटन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू विल हैव कैलकुलेट ए पार्ट्स दैट यू विल हैव कैलकुलेट फ्रिक्शन, बी पार्ट्स दैट यू विल हैव कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना बेटा। यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द एक्सेलरेशन। द स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले करोगे कैलकुलेट लिमिटिंग। ये लिमिटिंग किसके बराबर होता है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एम। अब यहाँ पे म्यू एस क्या है, और आई विल राइट लाइक दिस, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू जी, ठीक है ना बेटा। आप मुझे बताइए म्यू एस किसके बराबर है 0.2, व्हाट अबाउट द मास ऑफ ब्लॉक 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये आएगा बेटा 2 इंटू 10 इज 20 न्यूटन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद यू विल हैव टू कंपेयर दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से कम हुआ तो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, इट विल नॉट एक्सेलरेट। अगर एक्सटर्नल लिमिटिंग से ज्यादा हुआ उस वक्त क्या होगा बेटा, ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना बेटा। तो वही हम करने जा रहे हैं। व्हाट आई विल राइट डाउन इज दिस, दैट दिस कैपिटल एफ is greater than limiting friction, it is greater than limiting friction। वो आप देख लो, कैपिटल F is 30, this is 20, 30 is greater than। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, ब्लॉक एक्सेलरेट्स, ब्लॉक एक्सेलरेट्स। और जब ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा दैट मीन इट विल मूव, इट इज इन मोशन। व्हेन इट्स इन मोशन तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, क्या वो स्टैटिक होगा, क्या वो काइनेटिक होगा, सर वो काइनेटिक होगा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट ए पार्ट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसमें होगा दैट विल बी काइनेटिक। अब अगर एक ही वैल्यू म्यू का दिया गया है then in that very case kinetic friction will be equal to the limiting friction। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं तब kinetic friction आपको निकालना पड़ेगा। वो किसके बराबर है बेटा, म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन, हाँ म्यू के मल्टीप्लाइड बाई, दैट्स इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन, यहाँ पे है एम इंटू जी। देख लो बेटा म्यू के किसके बराबर है, म्यू के इज इक्वल टू 0.1, इसका मास क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, दैट्स इक्वल टू 10, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स इक्वल टू 10। नाउ 0.1 into 10 is 10, 0.1 into 10 is 1, 1 into 10 is 10, तो ये निकला बेटा 10 न्यूटन। कितना निकला, तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 10 न्यूटन होगा। लिमिटिंग आपने निकाला 20 न्यूटन, एक ऑप्शन 20 भी होगा लेकिन इसका आंसर है बेटा 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बी पार्ट। देखो बेटा चलाने वाला फोर्स ये है, पीछे की दिशा में जो फोर्स है बेटा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन दिस टाइम, वो क्या निकला बेटा, वो है 10 न्यूटन। और वो बनेगा बेटा रोकने वाला फोर्स, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस और रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ब्लॉक। अब इसमें आप मुझे बताइए बेटा चलाने वाला फोर्स कितना है, दैट इज 30, रोकने वाला फोर्स कितना है, दैट इज 10, व्हाट अबाउट द मास, दैट इज 10। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या निकला बेटा, एक्सेलरेशन जो निकला दैट्स इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन एज वेल, ठीक है ना बेटा। सो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट कैलकुलेट लिमिटिंग, कंपेयर दिस लिमिटिंग विद कैपिटल एफ। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कैपिटल एफ होगा लिमिटिंग से इक्वल टू लिमिटिंग और लेस देन लिमिटिंग, या सेकंड पॉसिबिलिटी है f इज ग्रेटर देन लिमिटिंग। इफ इट इज इक्वल टू और लेस देन लिमिटिंग ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, कैपिटल F विल बी इक्वल टू स्मॉल f, ठीक। अगर कैपिटल F हुआ ग्रेटर देन लिमिटिंग देन इन दैट वेरी केस इट विल एक्सेलरेट, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। लेकिन वहां पे आपको ध्यान रखना है अगर म्यू का एक ही वैल्यू दिया गया है देन काइनेटिक इज इक्वल टू लिमिटिंग। अगर दो वैल्यूज दिए गए हैं तो फ्रिक्शन जो है बेटा दैट इज काइनेटिक इन नेचर विच इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाई m, ठीक है ना बेटा। सो आई एम श्योर दिस एग्जांपल इज आल्सो क्लियर टू यू। enough 48 minutes है। ओके बेटा, आई थिंक दिस enough फॉर टुडे, ठीक है ना। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।